Welcome students, welcome you all in our entirely new class and with new topic. From today, from this class onwards, we will study the entire unit of cellular respiration as mentioned in your MSc third semester syllabus. You can see the title of the class, which is cellular respiration. Obviously it will be again a long session to complete this particular topic. Cellular respiration, जिसको हम कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं, deals with the study of entire metabolic pathways which leads to the synthesis of ATP from energy rich molecules, or we can say organic fuels present in our cell or in our body. मतलब वह समस्त प्रक्रियाएं जिसमें कोशिका में मौजूद भोजन की ऊर्जा को हम स्टेप बाय स्टेप कई सारी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के तहत हम ATP का उस भोजन में उपस्थित रासायनिक ऊर्जा को हम ATP की ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं, और इन रासायनिक अभिक्रियाओं में कई सारे एंड प्रोडक्ट भी बनते हैं, और वो एंड प्रोडक्ट ज़्यादातर एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स ही हैं. सो वी विल स्टडी ऑल द एस्पेक्ट्स रिलेटेड विद द cellular respirations. We will start from the very basics of the metabolism. What is actually metabolism? What do we mean by the energy cycle inside the cell? We will also study a little bit about of the evolution of different type of processes, respirations like aerobic respirations or anaerobic respiration, and how these respiration contributes to the energy buildings in the case of cells. We will study diverse type of reactions involved in cellular respirations like glycolysis or other reactions, Krebs cycles and etc., and or other reactions in which glucose molecule is involved, metabolic process like gluconeogenesis, glycogenolysis or glycogenesis. So it is again a very broad topic and we will study it in detail. So we will start the topic, the cellular respiration, from overview of metabolism. हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या है, क्योंकि बिकॉज सेलुलर रेस्पिरेशन इज एक्चुअली पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म इज अ बिग टर्म and cellular respiration is actually a part of metabolism. So before we start, we come to our topic cellular respiration, we will discuss about the concept of metabolism. In very simple definition, metabolism can be defined as management of biomolecules and energy inside
a cell. Or we can say metabolism is totality of, it is another definition, or we can say metabolism is sum total of all the biochemical reactions taking place inside the cell. Inside the cell. So these are the two very simple definitions of metabolism. In one definition, I mentioned that metabolism is actually the management. Just focus on the term management. It is actually the management of all the biomolecules and energy inside the cells. Now we know that biomolecules are of four different kinds. That is carbohydrates, proteins, lipids, and nucleic acid. It means it is the management of these molecules inside the cell, and management here means that is from simple monomers to polymer, or conversion of polymeric form into monomeric form. For example, if we convert amino acids into protein or a polypeptide, so it is a synthetic activity. So amino acids are monomers of what? Polypeptides or proteins. So amino acids together with the process known as protein synthesis, which is actually an anabolic process, convert amino acid into a polypeptide. Glucose can be converted into glycogen, can be converted into starch, or starch can be degraded into, starch is a complex molecule, it can be degraded into small molecules or monomeric form, say glucose. So this is what called as management. But when the molecules are managed inside the cell, there is also energy perspective. Whenever management of biomolecules takes place inside the cell, it cannot be managed without involvement of energy. So चाहे बिल्डिंग अप एक्टिविटीज़ हो या जो अपन डाउनहिल प्रोसेसेस हो, दोनों ही केसेस के अंदर एनर्जी यहाँ पर इन्वॉल्व होती है, वो हम देखेंगे. इस तरह से वी कैन से all the biochemical reactions of a cells are actually called as, or they are actually part of metabolism. In metabolism, because biochemical reactions of this cell, these reactions may be, in most cases these reactions are multi-enzymatic pathways. So there is involvement of enzyme, because each pathway, each step of the reaction is catalyzed by a individual enzyme. So it is also about the regulation of enzymes which controls such reactions. So metabolism is a broad topic. It is a broad. There is a lot of things which we can study in this headline, which is now known as metabolism. Now I will represent metabolism by a diagrammatic view. Let's have a simple diagrammatic view of metabolism, and we will try to understand how two different activities, two broad activities, one is known as catabolic activities, another known as anabolic activities, or we can say actually metabolism is a sum total of all the anabolic activities of the cell and sum total of all the catabolic activities of the cell. So it is actually of metabolism is actually of two different type of activities. One is called as anabolism and another is called as catabolism. So we will with the help of the diagram, we will try to understand what is catabolism and what is anabolism, and how the catabolic process and anabolic processes are linked with each other.
Catabolism. Catabolism is actually conversion of एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स, जिनको हम ऑर्गेनिक फ्यूल्स भी कहते हैं, एनर्जी रिच molecules, or we can say they are actually high energy molecules. We can say them as organic fuels, like glucose, fatty acids, even amino acids. These are actually the organic fuel. These are the molecules which contains energy, and these energy molecules in multi-enzymatic pathways, they are being broken down into energy poor molecules. Energy poor molecule like carbon dioxide, water, ammonia. These all are inorganic compounds, and these are actually the organic compounds. So when the organic compounds or high energy compounds are being broken down into low energy compounds, it is actually a spontaneous process. ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस होती हैं या एक्सोथर्मिक, और ये जो रिएक्शंस होगी दे आर एक्चुअली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शंस एटीपी जनरेशन होता है, एटीपी का सिंथेसिस होता है. ये एटीपी का सिंथेसिस या तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से होगा या सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से होगा फ्रॉम एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. और इसके साथ साथ इस प्रोसेस के में रिड्यूसिंग पावर्स भी जनरेट होती है, like in the form of NADH2 or FADH2. These are the reducing powers. Now they carries the energy rich electrons. These NADs, they are, and FADs, they are actually coenzymes, and the energy rich electrons are then transferred to these compounds, and these are actually then utilized in, they can be utilized in building a process which is known as anabolic process. So such reactions are actually called as catabolic reactions, and catabolic reactions are actually exothermic in nature. Means their delta G will be always negative. Now such type of reactions produces ATP, which is called as energy currency of the cell, and the cell can then use this ATP in different kinds of work, including anabolic activities. Now in anabolic activities, or which we can say anabolism, the monomers like amino acids, monosaccharides, or we can say nucleotides. These are actually monomers. They can be converted into, or these all can be converted into their polymeric forms, or we can say polymers. Amino acids can form polypeptides, or we can say proteins. Monosaccharides can form polysaccharides. Nucleotides can form either nucleic acid, whether it is DNA or RNA. But this is actually building up activities. These are actually molecules which are actually monomers, and they are being converted into polymers. So during this process they requires energy, and energy is supplied in the form of ATP. So ATP is hydrolyzed during such process.
So ATP is consumed during such anabolic processes, which is known as anabolism. It also requires reducing powers, NADH2 or FADH2, the energy rich electrons, because these are high energy compounds as compared to these monomers. And this particular process in which ATP and reducing powers are involved in both, they are produced, ATP and reducing powers are generated during catabolic processes, and these ATP and reducing powers are later being used up in anabolic processes. So the generation of ATP and the reducing power as well as generation of NAD and ADP are linked together with catabolic as well as anabolic process, and this energy cycle, this is what called as energy cycle, is also known as energy coupling, is also known as energy coupling. कि जहाँ एनर्जी कपलिंग का मतलब ये हुआ कि कैटाबॉलिक प्रोसेस से एटीपी और रिड्यूसिंग पावर NADH2 या FADH2 सिंथेसाइज का जनरेशन होता है, और ये एटीपी या रिड्यूसिंग पावर्स फिर सिंथेटिक एक्टिविटीज़ में काम आते हैं, ठीक है। और जब ये यूज़ होंगे तो वापस पुनः ये ADP और NAD या FAD प्रोड्यूस करेंगे, जो वापस से कैटाबॉलिक प्रोसेस से वापस ATP और NADH2 का निर्माण करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेल के अंदर जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, तो एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हम ये नहीं कह सकते हैं बिल्कुल आइसोलेटेड है, वो आपस में लिंक्ड होती है, एंड दे आर लिंक्ड बाय दिस सच टाइप ऑफ एनर्जी कपलिंग्स। नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ये जो हम कैटाबॉलिक एक्टिविटीज स्टडी कर रहे हैं, चाहे जैसे कि जिसमें कोई एनर्जी रिच मॉलिक्यूल को हम एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, ये कोई सिंगल स्टेप में नहीं होती है, ये अलग अलग मल्टीपल स्टेप्स में होती है, और हर एक स्टेप एक इंडिविजुअल रिएक्शन है, और उस इंडिविजुअल रिएक्शन को कैटलाइज करने वाला एक इंडिविजुअल एंजाइम भी होता है। और अगर हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर जो कैटाबॉलिक प्रोसेस हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट से हो या लिपिड के कैटाबॉलिज्म की बात करें या प्रोटीन्स की अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म की बात करें, ये 3 डिफरेंट स्टेजेस में होती है। इनको ब्रॉडली हम 3 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, इन 3 स्टेजेस। इस तरीके से एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी 3 डिफरेंट स्टेजेस में हो सकती है। तो पहले देखते हैं कि किस तरीके से कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ 3 अलग स्टेजेस के अंदर कंप्लीट होती है। सपोज ये 3 डिफरेंट बायोमोलिक्यूल है, वन इज कार्बोहाइड्रेट से, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया ग्लाइकोजन का, एक ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल हमने फैट लिया, और एक प्रोटीन लिया। तो बेसिकली ये जो तीनों बायोमोलिक्यूल से अपनी पॉलीमरिक फॉर्म के अंदर है, और स्टेज 1 के अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अपने मोनोमरिक फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। जैसे मान लिया अगर ग्लाइकोजन है, उनका डिग्रेडेशन किया जाए तो वो ग्लूकोज मोनोमर फॉर्म करेंगे, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे। इस तरह से फैट्स जो हैं वो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स के अंदर कन्वर्ट होंगे, और प्रोटीन्स कन्वर्ट होंगे एमिनो एसिड्स के अंदर। तो इसको हम कहेंगे स्टेज 1। इट इज द स्टेज 1 ऑफ द कैटाबॉलिक प्रोसेस, जिसमें जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स है जो कि पॉलीमरिक फॉर्म में है। जैसे मान लिया कि अगर ये डाइटरी मॉलिक्यूल्स है, डाइटरी फूड के सब्सटेंसेस है, जैसे ग्लाइकोजन खैर अपने शरीर के अंदर भी होता है, तो अगर लिवर के अंदर भी ग्लाइकोजन का
डिग्रेडेशन होता है, ग्लाइकोजन को पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। इस तरह से फैट भी, अगर एंडोजीनस फैट भी है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लीसरॉल, एंड एंडोजीनस प्रोटीन्स आर अगेन दे आर बीन ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स। So this particular step is called as stage 1 of the catabolism. Stage 2 में ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल या ये दूसरे जो मॉलिक्यूल्स है ये हाईली ऑर्डर्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। दे आर एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स, फैटी एसिड्स हैं या चाहे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स, दे आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज जो है एक 6 कार्बन कंपाउंड है, फैटी एसिड भी बहुत ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा, इसमें भी काफ़ी कार्बन कंटेंट्स होगा, तो दे आर बीन कन्वर्टेड इनटू पायरूवेट और सिंपलर कंपाउंड और या एसिटिल कोएंजाइम है। जैसे बात करें ग्लूकोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू पायरूवेट एंड देन पायरूवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम है, एसिटिल कोएंजाइम है विच इज़ अ 2 कार्बन कंपाउंड। सो फैटी एसिड का भी जब ऑक्सीडेशन, जैसे ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन करेंगे कैटाबॉलिज्म के अंदर, अगर इन ऑक्सीडेशन की जब बात आ रही है तो इट मीन्स इट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ग्लाइकोलाइसिस के तहत ये कहाँ जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस, ये एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन दोनों में हो सकता है। इज कन्वर्ट इनटू पायरूवेट एंड देन पायरूवेट इज कन्वर्ट इनटू एसिटिल कोएंजाइम। इस तरह से अमीनो एसिड्स को भी अगर इनसे अमोनिया ग्रुप अलग कर दिया जाए तो ये भी एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। ये हो गया स्टेज 2 रिएक्शंस। स्टेज 2 और स्टेज 2 की प्रोसेस में काफ़ी स्टेप्स के अंदर एनर्जी जनरेशन भी होता है, डेट इज एटीपी सिंथेसिस भी होगा, पर उस एटीपी सिंथेसिस को हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और स्टेज 2 के अंदर एटीपी सिंथेसिस भी होगा और कुछ रिड्यूसिंग पावर्स भी जनरेट होती है, ठीक है। फिर जो कॉमन प्रोडक्ट बना स्टेज 2 के अंदर, चाहे वो ग्लूकोज से बना हो, चाहे फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से बना हो या अमीनो एसिड के ऑक्सीडेशन से हो, फिर वो जाएगा स्टेज 3 के अंदर। और स्टेज 3 के अंदर, और स्टेज 3 जो है वो हमेशा एरोबिक कंडीशन के अंदर ही होगी। स्टेज 3 मीन्स स्ट्रिक्टली इन एरोबिक कंडीशन। इन दिस केस ये क्रेब्स साइकिल्स जो कहते हैं उसके अंदर जाएगा और अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और वी कैन से अमोनिया, ये बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे। दीज आर एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स। और यहां पर स्टेज 3 के अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा। उस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में एटीपी सिंथेसिस होगा। यहां पर जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा था वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है के साथ साथ, तो जो रिड्यूसिंग पावर जनरेट होगी अल्टीमेटली वो रिड्यूसिंग पावर्स जो है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से यहां पर एटीपी जनरेट करेगी। बट दिस स्टेज 3 इज कॉमन टू ऑल टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल। इट इज कॉमन टू ग्लाइकोजन का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें भी कंप्लीट, जब एरोबिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन होगा तो क्रेब्स साइकिल होगा। फैटी एसिड्स का भी जब ऑक्सीडेशन होगा कंप्लीट तब भी क्रेब्स साइकिल्स होगा, जब क्योंकि एसिटिल कोएंजाइम जनरेट होगा। और प्रोटीन्स जब अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होंगे, अमीनो एसिड्स का भी जब ऑक्सीडेशन होगा कंप्लीट तो भी क्रेब्स साइकिल के थ्रू होगा। सो इट इज स्टेज 3 कैन बी कॉल्ड एज कॉमन कैटाबॉलिक पाथवे। ये एक तरह का कॉमन है सभी के लिए। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉमन कैटाबॉलिक पाथवे। और इस क्रेब्स साइकिल को एम्फीबॉलिक पाथवे भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक पाथवे मीन्स this Krebs cycle is both anabolic and catabolic in nature. Anabolic and catabolic nature, दोनों ही प्रकृति का है। ये कैटाबॉलिक नेचर का मतलब है कि एसिटिल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड इट रिजल्ट्स इनटू द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। सो दिस इज द कैटाबॉलिक नेचर। बट this Krebs cycle is not a single step process. It is a multi-step process or we can say multi-enzymatic process. और
जब मेटाबॉलिज्म होता है तो मेटाबॉलिज्म में चूंकि एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है, तो एंजाइम रिएक्शन जब भी होगी तो तीन चीज़ें होती है। एक तो सबस्ट्रेट होगा, एक प्रोडक्ट बनता है, और कई बार इंटरमीडिएट्स भी बनते हैं। जैसे कि हम कहें कि एक सबस्ट्रेट है जो रिएक्शन स्टार्ट हो रही ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना और डी से फाइनली पी बना। तो ए इज सबस्ट्रेट, पी इज प्रोडक्ट, while बी सी डी आर एक्चुअली intermediates. And it is a multi-enzymatic pathway. It is catalyzed by, say A to B is catalyzed by E1 enzyme, B to C is catalyzed by E2 enzyme, E3 enzyme and E4 enzyme, like this. So both, मतलब we can say the substrates, the products and the intermediates are called as metabolites. They all the three categories are called as मेटाबोलाइट्स। ये क्या कहलाएंगे? मेटाबोलाइट्स। तो कहना मतलब यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब क्रेब्स साइकिल की बात कर रहे हैं तो क्रेब्स साइकिल भी एक मल्टी एंजाइमेटिक पाथवे है, और उस क्रेब्स साइकिल के अंदर भी जो इंटरमीडिएट्स हैं, जो मेटाबोलाइट्स हैं, इंटरमीडिएट्स बनेंगे, वो इंटरमीडिएट्स एनाबोलिक नेचर के भी होते हैं, क्योंकि कई सारे इंटरमीडिएट्स फिर प्रिकर्सर का काम करेंगे और प्रिकर्सर का काम करके कई सारे प्रोडक्ट्स का सिंथेसिस करेंगे। जैसे सिट्रेट है, सिट्रेट कैन बी यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सम फैटी एसिड्स के सिंथेसिस में काम आ सकता है, या अल्फा कीटोग्लूट्रेट इज वन ऑफ द की इंटरमीडिएट ऑफ TCA cycle, and that alpha ketoglutarate is used in synthesis of amino acids, non-essential amino acids. So it is both catabolic in nature as well as anabolic in nature. So this is about the catabolic overview of the process, which you can say the metabolism, in which how catabolic processes inside the cell can be progressed. So this was a rough outline of the catabolic process, which can be divided into three different stages: stage 1, stage 2 and stage 3. Stage 3 is common to all type of substances, like whether it is a carbohydrate, whether it is a fatty acid, or it is a fat, or it is a protein. They all are being converted in by the stage 1 and stage 2 process into acetyl coenzyme A, and finally they are being converted into the energy poor molecules like carbon dioxide, water or ammonia. Now the catabolic process is a type of, we can say, converging process. Converging process, it means like this. Say this is carbohydrate, this is fat, and this is say protein. They are three different substrates. They are being converted into a single type of substrate, and the single type of substrate is acetyl coenzyme A. And that acetyl coenzyme A undergo Krebs cycle, and it results into a large amount of energy in the form of ATP in the presence of oxygen. So we can say it is a converging process. Converging का मतलब ये हुआ कि अलग-अलग इनकी शुरुआत अलग-अलग मॉलिक्यूल से हो रही है, पर जब इनका जो एंड होता है वो सिमिलर होता है, सिंगल टाइप में होता है। जैसे ATP बना रहे हैं सभी और सभी के अंदर जो बाई प्रोडक्ट्स निकल के आ रहे हैं वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स हैं, अल्टीमेटली दे आर ऑल कन्वर्टेड इनटू सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, सिमिलर टाइप ऑफ एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स. सो इट इज converging process, we can say. Now the important thing about metabolism is that that is the how the cell utilizes ATP, how the cell produces
how the catabolic process produces ATP and how these ATP is utilized in the anabolic processes. So, which is actually called as energy cycle of the cell. This energy cycle links catabolic and anabolic processes. ये कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस को लिंक करता है कुछ इस तरीके से कि ड्यूरिंग कैटाबॉलिक प्रोसेसेस ATP is synthesized from ADP and inorganic phosphate, and this ATP is then utilized in anabolic process. Where it is again get hydrolyzed into ADP and inorganic phosphate. It doesn't mean this is what called as energy cycle. It is a simple part of energy cycle. इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ATP सिर्फ एनाबॉलिक प्रोसेस में काम आ रहा है, क्योंकि सेल को जो भी वर्क करना है उस वर्क के लिए ATP की रिक्वायरमेंट होती है और एक वर्क होता है एनाबॉलिक प्रोसेस. अगर यूँ देखा जाए तो ATP 3 डिफरेंट टाइप के प्रोसेस में काम इन्वॉल्व है. डिफरेंट जो 3 ब्रॉड कैटेगरीज है सेल के अंदर, वो जो वर्क की बात करें, सेल कौन कौन से वर्क परफॉर्म कर सकता है. पहला, इट कैन इन्वॉल्व इन सम केमिकल वर्क. केमिकल वर्क हियर मीन्स एनाबॉलिक प्रोसेसेस. एनाबॉलिक प्रोसेस मीन्स सिंथेटिक एक्टिविटी. जैसे मान लिया DNA का सिंथेसिस हो गया, RNA सिंथेसिस हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हो गया, फैटी एसिड सिंथेसिस हो गया. ये सारे के सारे क्या है, केमिकल वर्क्स हैं और एनाबॉलिक प्रोसेसेस हैं. इट सेल कैन परफॉर्म ट्रांसपोर्ट वर्क. है ना, जितने भी सिंथेटिक एक्टिविटीज हो गई वो केमिकल वर्क्स हो गए, और जितने भी ट्रांसपोर्ट हो गए, क्योंकि सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है आउटसाइड, बाहर से लेके अंदर तक, या अंदर भी एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल के बीच में कोई भी मॉलिक्यूल या आयन का या सब्सटेंस का जब ट्रांसपोर्ट होगा उसमें भी एनर्जी खर्च होती है, उसके लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ATP की रिक्वायरमेंट होती है. एंड मोस्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो भी है, चाहे वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, उसमें एनर्जी का खर्च होता है या ATP की रिक्वायरमेंट होती है. और तीसरा जो है इस केस के अंदर वो आता है मैकेनिकल वर्क. मैकेनिकल वर्क जहां पर यहां पर भी ATP की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे मान लिया मसल कॉन्ट्रैक्शन, या मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, कि सेल्स में कहीं जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म उनके पास सीलिया होते हैं, फ्लैजेला होते हैं, तो दे मूव सीलिया एंड फ्लैजेला, बट फॉर दैट मूवमेंट दे रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. या क्रोमोसोमल ड्रैगिंग ड्यूरिंग एनाफेज, कि जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन में जब चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि जब क्रोमोसोम्स 2 अलग अलग पोल्स की तरफ माइग्रेट करते हैं और माइग्रेशन होता है ड्यूरिंग एनाफेज, तो उसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल ड्रैगिंग. तो इट इज अगेन अ सॉर्ट ऑफ मैकेनिकल वर्क. तो इन सब चीज़ों के लिए, चाहे वो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो, चाहे मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला हो, चाहे क्रोमोसोमल ड्रैगिंग हो, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज मैकेनिकल वर्क, एंड द सेल्स नीड energy in the form of ATP. Whether it is a transport kind of what, whether it is active transport, that is transport of a substance from its low concentration towards high concentration region, whether it is a primary active transport or it is a secondary active transport, it requires ATP.
whether it is a synthetic activity, it is building up activities, whether it is an anabolic activity, whether it is synthesis of glycogen, which is known as glycogenesis, synthesis of protein, which is known as protein synthesis, synthesis of DNA, which is called DNA replication, synthesis of RNA, which is called as transcription. All these type of activities are actually anabolic activities, and for that anabolic activities the cell requires ATP, and the ATP is produced during the catabolic process. So this is about the an overview of the metabolism. And why ATP? ATP is actually energy currency of cell. They are actually phosphate molecules, adenosine triphosphate molecules, and most organic phosphates present inside the cells are actually the high energy molecules. So let us have a look on the structure of ATP. जब हम ATP का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ATP में क्या होता है, एडिनिन बेस होगा, दिस इज एडिनाइन, दिस इज द 9th number of nitrogen which is linked with the carbon number 1 which is the anomeric carbon of the pentose sugar. The sugar is pentose, this is carbon number 1, the anomeric carbon. So this is a glycosidic bond between carbon number 1 and the 9th number of nitrogen of adenine base. This is carbon number 2 and OH, and presence of OH at carbon number 2 it means it is a ribose sugar. अगर यहाँ ऑक्सीजन नहीं होता तो ये डीऑक्सीरिबोस शुगर होती, बट इट इज राइबोस शुगर, C3OH C4 C5, this is carbon number 5, and it is linked with triphosphate. So this is what called as ATP, adenosine triphosphate, adenine, ribose sugar and 3 phosphate groups, है ना, which is therefore it is called as triphosphate. The phosphate which is linked with the C5 number of carbon is called as alpha phosphate. The second one is called as beta phosphate, and third one is called as gamma phosphate. And these bonds are actually called as, ये जो bonds है, this particular bonds, these are actually high energy bonds, and they are called as phosphoanhydride bonds, phosphoanhydride bonds. जब इन बॉन्ड्स का हाइड्रोलिसिस होगा तो दे रिलीज ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और जब ATP का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो इट रिलीजेस जो इसकी फ्री एनर्जी जो चेंज होता है वो कुछ इस प्रकार होता है. फॉर एग्जांपल सपोज ATP इज बीन हाइड्रोलाइज्ड एंड इट इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. मान लिया कि एक फॉस्फोएनाइड्रेट बॉन्ड हमने यहाँ से ब्रेक कर दिया, दिस वन से गामा फॉस्फेट, तो ये कन्वर्ट हो गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, दैट इज ADP, and this phosphate is released in the form of inorganic phosphate. तो जब इसका फ्री एनर्जी चेंज देखा गया डेल्टा G, तो इट वाज फाउंड दैट -7.3 किलो कैलोरी पर मोल अमाउंट की एनर्जी रिलीज की जाती है ATP की हाइड्रोलिसिस से. जब 1 मोल ATP का हाइड्रोलिसिस होता है तो लगभग 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी ये लिबरेट करता है, और वह एनर्जी काम आती है सेल के डिफरेंट वर्क्स के अंदर. अब all the organic substances या organic molecules which possess energy higher than 7.3 kilocalorie or which produces energy higher than 7.3 kilocalorie per mole on being hydrolyzed are categorized as energy rich molecules. So कहीं ऐसा नहीं है कि सेल में सिर्फ ATP ही है जिसकी एनर्जी कंटेंट ज़्यादा है, और इससे भी ज़्यादा
कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड सेल में मौजूद होते हैं जो इनकी एनर्जी इससे ज़्यादा होती है जब डेल्टा जी अगर उनका कंपेयर किया जाए। जैसे फॉस्फोइनोल पायरुवेट, उसका डेल्टा जी समथिंग अराउंड -14 के आसपास है। 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट, उसका भी डेल्टा जी ATP से ज़्यादा है, समथिंग अराउंड -11 या 13 के आसपास होगा। इस तरह से फॉस्फोक्रिएटिन, कई बार ये देखा ऑब्जर्व किया गया कि स्केलेटन मसल सेल्स के अंदर फॉस्फोक्रिएटिन भी एनर्जी सप्लाई करता है। इसका भी समथिंग अराउंड -9 या ऐसा कुछ फिगर्स, ये चेंजेस हो सकते हैं। बट कहना मतलब ये है कि देयर आर सम सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फोइनोल पायरुवेट, 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और फॉस्फोक्रिएटिन, जो कि स्केलेटन मसल सेल्स के अंदर भी एनर्जी प्रोड्यूस करती है। दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एंड इनकी जो एनर्जी है वो ATP से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स। सो मोस्ट ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स हैव हाई एनर्जी एंड दे प्रोड्यूसेस ऑन हाइड्रोलाइसिस। नाउ चूंकि मेटाबॉलिज्म क्या है, अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस, बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, और उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। और ये ज़रूरी भी है कि सेल के अंदर जो किस टाइप की प्रोसेस होगी, क्या कैटाबॉलिक प्रोसेस होगी या सेल के अंदर एनाबॉलिक प्रोसेस होती है, ये काफ़ी कुछ डिपेंड करता है उस सेल के एनर्जी स्टेटस पर। जैसे मान लिया कि दिस इज द सेल हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम में लो एनर्जी स्टेट में हो। जब लो एनर्जी स्टेट में है तो इसका मतलब उस सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मीन्स उसके अंदर ATP सिंथेसिस होना चाहिए या उसको ATP की नीड है, या हो सकता है सेल के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ATP है। तो दो डिफरेंट कंडीशन हो सकती है। सो यहाँ अपन बात कर रहे हैं सेल का ATP टू ADP रेशियो, या अपन कहें कि सेल का ATP पुल या ADP पुल किस तरीके से है। तो सेल में किस तरह की मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी वो काफ़ी कुछ डिपेंड करती है इस ATP टू ADP रेशियो। फॉर एग्जांपल, इफ ATP रेशियो इज मोर एज कंपेयर टू ADP रेशियो, देन इट मीन्स दैट cell has sufficient amount of free energy available, because ATP is again what? फ्री एनर्जी। मैंने एंजाइम में अपन ने इस चीज़ को क्लियर किया है, फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। फ्री एनर्जी मीन्स द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन बी यूटिलाइज टू डू वर्क। सो इट मीन्स सेल के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो सेल यहाँ पर एनाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर जाएगा, मीन्स वो बिल्डिंग अप एक्टिविटीज कर सकता है, अपनी एनर्जी यूज कर सकता है in some synthetic processes, or it can utilize its energy in transport activities or some other type of activities. But if condition is like this, that cell has low amount of ATP as compared to the ADP, or we can say if the ADP ratio of cell is high, it means cell is deficient of energy, सेल के पास ऊर्जा की कमी है। तो उस केस के अंदर सेल स्ट्रिक्टली कैटाबॉलिक प्रोसेस की तरफ जाएगा। कैटाबॉलिक प्रोसेस मीन्स एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स को एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाएगा ताकि ATP सिंथेसिस हो। तो ये जो प्रोसेसेस है ये काफ़ी कुछ चीज़ पर डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? इन रेशियोज़ पर, और अल्टीमेटली ये रेशियोज़ इनको रेगुलेट करेंगे। तो हम बात करना चाह रहे हैं कि एक ओवरऑल कि ये रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट। सो रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ ए नॉर्मल सेल। अगर ये रेगुलेशन ख़त्म हो जाए तो सेल जो है वो एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म में जाएगा। सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और जो नॉर्मल प्रोसेस जब डिस्टर्ब होगी तो इट मे लीड्स इनटू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। सो मैं ये यहाँ पर फोकस करना चाह रहा हूँ रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म पर।
रेगुलेशन का मतलब ये हुआ कि किस तरीके से मेटाबॉलिक प्रोसेस को नियंत्रित किया जाता है सेल में, और ये नियंत्रण जरूरी है सेल ताकि नॉर्मल फंक्शनिंग कर पाए। इसके लिए आवश्यक है कि मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित किया जाए, और ये नियंत्रण किस पर डिपेंड कर रहा है? उसी चीज पर, किस पर? एटीपी टू एडीपी रेशियो पर। अब चूंकि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या है? एनाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिक प्रोसेस है, और ये प्रोसेसेस क्या है? एक्चुअली मल्टी एंजाइमेटिक पाथवेज है। सो ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस are actually multi-enzyme pathways. It means that, for example, this is the substrate molecule A, it is converted into B, B is converted into C, C is converted into D, and D is converted into a product P. The ultimate aim of this particular pathway is production of that product P. This was the substrate, and individual step is catalyzed by enzyme, different enzymes E3 and E4. So कहना मतलब है कि मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना मतलब इन रिएक्शंस को रेगुलेट करना है। रिएक्शन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, किस स्पीड पर होनी चाहिए। अल्टीमेटली ये रिएक्शंस कैसे रेगुलेट की जा सकती है? द रिएक्शंस कैन बी रेगुलेटेड बाय रेगुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, or we can say the regulation of metabolism depends upon regulation of enzymes. कि जब आप एंजाइम्स को रेगुलेट कर लेंगे तो मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट किया जा सकता है। और मैं जैसे कि अपन ने लास्ट टॉपिक जो अपना एंजाइम्स पढ़ा, तो एंजाइम्स में अपन ने मैंने एग्जांपल दिया था, एलोस्टिक रेगुलेशन का भी मैंने एग्जांपल दिया था कि किस तरीके से एंजाइम्स को रेगुलेट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे भी तीन अलग अलग तरीक़ों से एंजाइम को रेगुलेट किया जा सकता है, तो उनका अपन देख लेते हैं एक ओवरव्यू, कौन कौन से ऐसे तीन डिफरेंट तरीके हैं या फिर डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि एंजाइम को रेगुलेट कर सकते हैं। और एंजाइम जब रेगुलेट होंगे तो रिएक्शन की रेट भी या मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी हम रेगुलेट कर सकते हैं। Enzyme can be regulated by regulating the different type of activities, like we can say factors like pH, like temperature, availability of substrate. एंजाइम की जो रिएक्शन है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? एंजाइम में बी रेगुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ pH of the system, on the basis of temperature of the system, on the basis of concentration of substrate. एक तो ये तरीका है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो एंजाइम की स्पीड भी ज़्यादा होगी। अगर पीएच फ्लक्चुएशन ज़्यादा होंगे तो एंजाइम की जो स्ट्रेंथ या एंजाइम का जो एक्टिविटी रेट ऑफ रिएक्शन है वो अफेक्टेड होगी। टेम्परेचर भी, अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर है तो एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा होगी, पर अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से बाहर हो तो इसकी रेट पर इफेक्ट आता है। तो इन तरीक़ों से भी एंजाइम्स की रिएक्शंस को कंट्रोल किया जा सकता है, एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सकता है, एंड अल्टीमेटली वी कैन कंट्रोल द मेटाबॉलिक प्रोसेस। दूसरा जो होता है एंजाइम को रेगुलेट किया जा सकता है, जिसको हम कह रहे हैं, और मोस्ट केसेस जो मल्टी एंजाइमेटिक प्रोसेस के अंदर मैंने आपको एक बात पहले बताई थी कि एलोस्टिक एंजाइम्स जो होते हैं वो मल्टी एंजाइमेटिक पाथवे के अंदर काम करते हैं, एंड दे आर द की एंजाइम्स विच रेगुलेट्स द एंटायर रिएक्शंस, एंड दीज आर एक्चुअली कॉल्ड एज एलोस्टिक एंजाइम्स। तो जो कई सारी मल्टी एंजाइमेटिक पाथवे के अंदर जो होते हैं एलोस्टिक एंजाइम्स होते हैं, उस एलोस्टिक एंजाइम्स के पास एलोस्टिक साइट्स होती है, और उन एलोस्टिक साइट्स पर पॉजिटिव
इफेक्टर मॉलिक्यूल या नेगेटिव इफेक्टर मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं। और अगर पॉजिटिव इफेक्टर मॉलिक्यूल बाइंड हुआ एलोस्टिक एंजाइम पर तो वो उसकी स्पीड को बढ़ा देगा, अगर नेगेटिव इफेक्टर मॉलिक्यूल बाइंड होगा तो उसकी स्पीड को कम कर देगा। जैसे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस का एग्जांपल लिया था मैंने कि अगर फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस पर एडीपी या इस तरह के मॉलिक्यूल्स बाइंड होंगे तो उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देंगे। एटीपी अगर बाइंड होगा तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देगा। अल्टीमेटली द रेट ऑफ द रिएक्शन इज कंट्रोल्ड। एंड थर्डली, एंजाइम की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है एट जेनेटिक लेवल आल्सो। क्योंकि जो एंजाइम्स जो है, एंजाइम्स और व्हाट, प्रोटीन्स, और जब हम टर्नओवर रेट की बात करें तो प्रोटीन्स क्या है, बनते रहते हैं, दे आर बीन सिंथेसाइज्ड एंड दे आर बीन डिग्रेडेड। ऐसा नहीं कि प्रोटीन बन गए तो बहुत लंबे से वो एज सच थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द सेल, एक बार प्रोटीन बन गया तो पूरी जब तक वो सेल जीवित है तब तक वो प्रोटीन भी जीवित रहेगा या उस फॉर्म में रहेगा। प्रोटीन बनता है, प्रोटीन टूटता है, ठीक है। तो ये जो टर्नओवर जो है मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल्स का, इट इज व्हाट कॉल्ड एज टर्नओवर। टर्नओवर मतलब हुआ कि नया मॉलिक्यूल बना और कितने टाइम मॉलिक्यूल डिग्रेड हुआ, वापस से बनेगा, डिग्रेड होगा। तो जब वो मॉलिक्यूल बनता है फंक्शनल फॉर्म में तब वो प्रोसेस वो अपना काम करेगा, जब डिग्रेड हो गया तो वो काम नहीं करेगा, या अगर वो डीनेचर हो गया तो वो काम नहीं करेगा। तो ये जो प्रोसेस है इससे भी हम एंजाइम को रेगुलेट कर सकते हैं या रिएक्शन को रेगुलेट कर सकते हैं। इस कैटेगरी को मैं थोड़ा सा फोकस करते हैं, जेनेटिक लेवल को आप रिमाइंड करिए ऑपरेंट कॉन्सेप्ट्स जो आपने पढ़े हैं। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। देखो, सेल में दो तरह के एंजाइम्स होते हैं या दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं सेल के अंदर। एक प्रोटीन को तो हमने कहा, एक पॉलीपेप्टाइड को कहा कंस्टिट्यूटिव प्रोटीन या कंस्टिट्यूटिव एंजाइम, और एक होता है रेगुलेटिव एंजाइम, या हम इसको इंड्यूस्ड एंजाइम्स भी कह सकते हैं, या इंड्यूस्ड प्रोटीन्स। कंस्टिट्यूटिव प्रोटीन्स या कंस्टिट्यूटिव एंजाइम्स वो प्रोटीन्स या एंजाइम्स होते हैं जो हर वक्त हर सेल में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ body cells and mostly at all time। क्योंकि ये ऐसे एंजाइम्स हैं या ऐसे प्रोटीन्स हैं जो ऐसी प्रोसेस को कैटलाइज करें जो बहुत आवश्यक है और जिसके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट लगभग हर प्रकार के सेल को है और हर समय रहती है। जैसे मान लिया अगर अपन ह्यूमन बॉडी की बात करें तो से हेक्सोकाइनेस है ना, एक एग्जांपल लिया अपन ने हेक्सोकाइनेस। ये हेक्सोकाइनेस एंजाइम लगभग बॉडी के हर एक सेल में होता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है जिसको कह रहे हैं ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। द वेरी फर्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस हर एक सेल में होगी, चाहे वो मसल सेल हो, स्केलेटन की, या हार्ट की मसल सेल हो, चाहे ब्रेन की सेल हो, चाहे आरबीसी की सेल हो, चाहे लीवर की सेल हो, चाहे किडनी मेडुला रीजन की सेल हो, कोई सी भी सेल हो, आई की कॉर्नियल सेल हो या लेंस वाली सेल्स हो, हर सेल के अंदर ये रिएक्शन होगी। तो इट मीन्स ये रिएक्शन तब होगी जब ये एंजाइम होगा। इट मीन्स ये एंजाइम हर कोशिका के अंदर उपस्थित है और लगभग हर समय हर सेल को ऊर्जा की आवश्यकता रहती है और ग्लूकोज का हाइड्रोलाइसिस ऑक्सीडेशन होता है। तो इसलिए ये एंजाइम क्या कॉन्स्टिट्यूटिव है, इसका एक्सप्रेशन इनके जीन्स, ऑब्वियसली एंजाइम है तो इसका कोई ना कोई जीन होगा और वो जीन ऑलमोस्ट एक्सप्रेस ही रहता है। पर कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो रेगुलेटिव कह सकते हैं, इंड्यूस होते हैं, और ये अपन कहें कि वो कुछ स्पेसिफिक सेल्स के अंदर ही बनते हैं या ऐसे प्रोटीन से जो स्पेसिफिक सेल टाइप में बनेंगे और दूसरे में नहीं बनेंगे, उनको हम कहेंगे
रेगुलेटिव एंजाइम या इंड्यूस एंजाइम या इंड्यूस प्रोटीन या रेगुलेटिव प्रोटीन्स, है ना, दे आर सेल स्पेसिफिक, दे आर टिश्यू स्पेसिफिक. तो सच एंजाइम्स आर सेल स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक, कि जब उनकी रिक्वायरमेंट होगी तभी इनका एक्सप्रेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो देयर एक्सप्रेशन इज अंडर टाइट कंट्रोल. इनका जीन का एक्सप्रेशन जो है तभी होगा जब सेल को उस एंजाइम की या उस मेटाबॉलिक प्रोसेस की या पाथवे की रिक्वायरमेंट हो. तो इनका जैसे ऑपेरोन की बात करें, ऑपेरोन में क्या है कि ऐसे जीन्स हैं जिनका एक्सप्रेशन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होता है. ये बैक्टीरियाज की बात करें. अब जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन, जैसे हमने एक प्रोटीन लिया है इंसुलिन, तो इंसुलिन प्रोटीन जो है इट इज सिंथेसाइज्ड बाय बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास. इट इज नॉट सिंथेसाइज्ड और सिक्रेटेड बाय लिवर सेल या कोई स्केलेटल मसल सेल में तो सिंथेसाइज नहीं हो रहा. इसका मतलब ये नहीं कि इंसुलिन का जीन इन सेल्स में नहीं है, इन कोशिकाओं में है. इंसुलिन का जीन बॉडी की हर एक सेल में होगा अकॉर्डिंग टू जीनोमिक इक्विवेलेंस. जीनोमिक इक्विवेलेंस ही कहता है कि अगर मान लिया कि 30,000 अगर जाइगोट जो था, जाइगोट के अंदर जो अपना 30,000 जीन है, तो जाइगोट से ही सारी की सारी कोशिकाएं बन रही है. ऑल द बॉडी सेल्स आर बीइंग सिंथेसाइज्ड फ्रॉम दैट सिंगल जाइगोट. जाइगोट अल्टीमेटली एक टोटिपोटेंट सेल था. तो हर बॉडी सेल के अंदर वो 30,000 जीन है. हर बॉडी सेल के अंदर लगभग सारे जीन्स हैं, पर किन कुछ ही बॉडी सेल्स के अंदर ऐसा होता है कि एक स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेस होता है. तो वो जो जीन है उसको हम रेगुलेटेड जीन्स कह सकते हैं, जिनका एक्सप्रेशन एक टाइट कंट्रोल में होता है. तो कह दिया कि अपने जैसे माना अपन ये जानते हैं कि इंसुलिन का जीन सिर्फ बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज में ही एक्सप्रेस हो रहा है और किसी दूसरी सेल में एक्सप्रेस नहीं हो रहा. पर वो इंसुलिन का जीन कब एक्सप्रेस होगा? जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा तो वो इंसुलिन को सिंथेसाइज होगा, सीक्रेट होगा और वो अपना काम करेगा. तो वो एक पर्टिकुलर कंडीशन के होता है. तो ऐसे ही कई सारे एंजाइम्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक कंडीशन टाइम पीरियड के अंदर ही एक्सप्रेस होते हैं और उनका जो रेगुलेशन है बहुत ही कंट्रोल्ड होता है, टाइटली कंट्रोल होता है. तो इसलिए हम उनको कहते हैं रेगुलेटिव एंजाइम. जैसे मान लिया कि ऑपेरोन के, जैसे हमने कह रहे हैं कि लैक्टोज ऑपेरोन है, तो लैक्टोज ऑपेरोन का लैक वाई जीन है, लैक जेड जीन है, लैक ए जीन है. तो लैक वाई जीन अलग अलग गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है. तो वो गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो है पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही एक्सप्रेस होगा. कब होगा? जब लैक्टोज उपस्थित होगा. लैक्टोज नहीं है तब नहीं होगा. तो इस तरीके से भी रेगुलेशन होता है. तो कहने का मतलब है 3 अलग तरीक़ों से एंजाइम्स को रेगुलेट किया जा सकता है और एंजाइम के रेगुलेशन से ही हम मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट कर सकते हैं. तो एक जैसे मान लिया कि डिपेंड करता है एंजाइम किस परिस्थिति के अंदर, उसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसा है, कि मीन्स वहाँ पे पीएच कितना है, वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट है कि नहीं. अगर सबस्ट्रेट ही नहीं है तो एंजाइम क्या करेगा? एक वो भी है. दूसरा एलोस्टिक रेगुलेशन भी हमने देखा है कि ज़्यादातर बड़ी स्टेप्स के अंदर जो होती है या मल्टी एंजाइमेटिक स्टेप्स के अंदर एलोस्टिक एंजाइम इज द की एंजाइम विच रेगुलेट्स द एंटायर प्रोसेस. जैसे एस्पार्टेट ट्रांसकार्बोमाइलेज है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है, इस तरह से. तीसरा होता है एक जेनेटिक लेवल की, और जेनेटिक लेवल में मीन्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बाइंड होगा, जीन एक्सप्रेशन होगा. जीन एक्सप्रेशन होगा तभी वो एंजाइम बनेगा. कुछ तो कंस्टिट्यूटिव होते हैं जो ऑलमोस्ट हर सेल में होते हैं क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है. जैसे राइबोसोम से उनकी रिक्वायरमेंट, आरएनए की रिक्वायरमेंट हर सेल को होती है, इसलिए आरएनए का प्रोडक्शन, आरएनए का जीन का एक्सप्रेशन हमेशा कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन कहलाता है. जबकि कुछ जीन्स होते हैं इनका रेगुलेटेड है. जैसे मान लीजिए हीमोग्लोबिन है तो ग्लोबिन भी आपको सिर्फ कहाँ मिलेगा? आरबीसीज के अंदर, और कोई दूसरी सेल में तो एक्सप्रेस हो नहीं रहा है. तो अलग अलग तरीक़ों से भी रेगुलेट किया जा सकता है. और ये रेगुलेशन ज़रूरी भी है क्योंकि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस सेल के अंदर ऐसी है जो रिवर्सिबल होती है. जैसे अब अपने ये देखा कि रेगुलेशन 3 अलग अलग तरीक़ों से किया जा सकता है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का. पर क्यों ये वाई रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड, वाई देयर इज अ नीड ऑफ रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म इन द सेल? तो हम उसके बारे में हम देखना चाहेंगे कि ये रेगुलेशन की आवश्यकता क्यों है. रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट फ्यूटाइल साइकिल इनसाइड द सेल. जैसे मान लिया एक दो सिंपल प्रोसेस की बात करेंगे हम यहाँ पर. जैसे सेल के अंदर यहाँ पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरूवेट के अंदर से.
उस प्रोसेस को हमने कहा ग्लाइकोलाइसिस। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि ताकि एटीपी सिंथेसाइज करें। ग्लूकोज इज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, इट इज कन्वर्टेड इनटू सम एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल पायरुवेट, ये फर्दर आगे उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है और एटीपी प्रोडक्शन हमारा इस सेल का उद्देश्य था कि सेल को एटीपी की रिक्वायरमेंट है। और ये जो रिएक्शन है वो एक तरह से कैटाबॉलिक रिएक्शन है। हालांकि ये एक मल्टी एंजाइमेटिक पाथवे, लगभग 11 एंजाइम्स इसमें काम करते हैं, तो 11 डिफरेंट स्टेप्स हैं, बट ये अपन समझने के लिए कर रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस हम डिटेल में आगे देखेंगे। इस तरह से हम पायरुवेट से वापस ग्लूकोज ही बना सकते हैं। हम पायरुवेट से सेल कैन सिंथेसाइज ग्लूकोज फ्रॉम पायरुवेट एज वेल एज फ्रॉम लैक्टेट। पायरुवेट को लैक्टेट में भी कर सकते हैं, लैक्टेट भी आगे चल करके ग्लूकोज बना सकता है। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द सेल, एंड द सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस which is a sort of anabolic process। ये एक बिल्डिंग प्रोसेस, एक सिंथेटिक एक्टिविटी है। इट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस विच इज़ ग्लाइकोलाइसिस। और इस केस के अंदर चूंकि हमें पायरुवेट से एक हायर ऑर्डर का स्ट्रक्चर बनाना है, हायर ऑर्डर मतलब लेस डिसऑर्डर वाला, और हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर क्या है, ग्लूकोज, तो हमको एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ में हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है सेल को। अब मेजॉरिटी ऑफ स्टेप्स ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोजियोनेसिस की ज़्यादातर स्टेप्स क्या है, रिवर्सिबल है, ठीक है, कुछ स्टेप्स इरिवर्सिबल है। अब चक्कर क्या है, क्यों आवश्यकता है, क्या सेल में, आप समझिए, क्या सेल में एट ए टाइम साइमल्टेनियसली ग्लाइकोलाइसिस और साइमल्टेनियसली ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या संभव है? क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस, जैसे मान लिया ग्लूकोज से पायरुवेट बना, काफ़ी एंजाइम्स दोनों स्टेप्स में सिमिलर है। जैसे मान लिया कि यहाँ पर एक स्टेप आती है जिसके अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है ना। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना, कोई आइसोमरेज एंजाइम यहाँ पर काम कर रहा है। अब यही आइसोमेरेज एंजाइम वापस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी बना देगा। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, आगे चल करके पायरुवेट बनेगा, तो ये तो हम कह रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस है। पर जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आगे चल के ग्लूकोज बनता है, तो ये जो प्रोसेस हो जाएगी वो एनाबॉलिक प्रोसेस, या जिसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहेंगे। तो काफ़ी जो स्टेप्स ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्या है, रिवर्सिबल स्टेप्स है। और वो रिवर्सिबल स्टेप्स आर कैटलाइज्ड बाय द सेम एंजाइम। दिस इज द एंजाइम विच इज सिमिलर, सेम। ये ग्लाइकोलाइसिस में भी काम कर रहा है, यही एंजाइम ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी काम कर रहा है। अब जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। अगर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई तो यही एंजाइम इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। बट आप ये सोचिए, मैं क्या दोनों प्रोसेस एक ही समय में एक साथ संभव है? नहीं। सेल में एट अ पर्टिकुलर टाइम अब या तो ग्लाइकोलाइसिस होगा या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों ही जो रिएक्शंस हैं, दोनों ही रिएक्शंस का एनर्जी स्टेटस डिफरेंट है। ग्लाइकोलाइसिस तब होगी सेल के अंदर जब सेल के अंदर एटीपी की कमी होगी। व्हेन, और जब कैटाबॉलिक रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस कब होगी, जब एटीपी सेल में कम है एज कंपेयर टू एडीपी। और कैटाबॉलिक, ये एनाबॉलिक प्रोसेस तब होगी जब एटीपी सेल में अधिक होगा एडीपी से। अगर सेल की परिस्थिति इस प्रकार है, सेल में ये स्टेटस है एनर्जी का, एटीपी का, तब ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा। पर सेल में अगर ये स्टेटस है एनर्जी का, तब ग्लाइकोलाइसिस होगा। इट मींस यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चीजें कंट्रोल की जा रही है, और वो एंजाइम्स है, यहाँ पर वो एंजाइम्स ही एक्चुअली कंट्रोल करेंगे। वो एंजाइम्स कौन से? रेट रेगुलेटिंग एंजाइम्स होंगे। जैसे मैंने कहा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज कंट्रोल करेगा इन एक्टिविटीज को। देयर आर सम इरिवर्सिबल स्टेप्स, कुछ इरिवर्सिबल स्टेप्स भी होते हैं, जब हम उनको डिटेल में देखेंगे। ये इरिवर्सिबल स्टेप्स ही एक्चुअली कंट्रोल करती है ऐसे प्रोसेसेस को जो काफ़ी सिमिलर है। अगर
आप समझ लिए जब सेल के अंदर एनर्जी की कमी है उसी टाइम क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, उसी टाइम ग्लूकोनियोजेनेसिस भी हो जाए, ये पॉसिबल कैसे? जब सेल के पास एटीपी ही नहीं है तो ये प्रोसेस कैसे हो सकती है? और अगर ये प्रोसेस हो रही है तो ग्लाइकोलाइसिस नहीं हो सकता। तो इट मीन्स दोनों जो रिएक्शंस हैं, whether it is anabolic, it is a catabolic process or anabolic process, they are tightly regulated. At a particular time, only a single process will be allowed inside the cell. If मान लिया अगर दोनों catabolic और anabolic process which are reversible in nature, if took place simultaneously, then such type of processes results into futile cycle. कि अगर दोनों ही एक साथ होने लगे simultaneously, तब हम उसे कहेंगे फ्यूटाइल साइकिल। क्योंकि फ्यूटाइल साइकिल से अल्टीमेटली क्या होगा? सेल को नुकसान होगा, देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी, फ्री एनर्जी का सेल को नुकसान है। ना तो वो एटीपी बना पा रहा है, नहीं एटीपी, जब सेल के पास एटीपी ही नहीं बना पाएगा और वो एटीपी वापस दे भी रहा है तो सेल के दूसरे जो वर्क्स है, जो दूसरे इंपॉर्टेंट वर्क्स है, हो सकता है वो ट्रांसपोर्ट वर्क हो सकता है वो दूसरे मेटाबॉलिक मैकेनिकल वर्क हो सकते हैं, या वो सकता है दूसरे सिंथेटिक वर्क है, वो नहीं हो पाएंगे और सेल का पूरा मेटाबॉलिज्म है डिसरप्ट हो जाएगा। बिकॉज फ्यूटाइल साइकिल विल अल्टीमेटली लीड्स टू मेटाबॉलिक डिसरप्शन इनसाइड द सेल। पूरा मेटाबॉलिक स्टेटस सेल का बिगड़ जाएगा। इसलिए जरूरी है कि इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जाए। और ये रेगुलेशन कौन करेगा? एंजाइम्स करेंगे। कि अगर सेल में एक बार समय कैटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है तो वही होगी, उसी समय एनाबॉलिक प्रोसेस नहीं होगी। हाँ, जब सेल के पास सफिशिएंट अमाउंट में एटीपी हो जाएगी तभी वो एनाबॉलिक प्रोसेस में जाएगा। तो दिस इज व्हाट अबाउट द ओवरव्यू ऑफ metabolism की what is actually metabolism is. It is actually the different type of chemical reactions or all type of biochemical reactions which took space inside the cell is collectively known as metabolism. It is actually the management of molecules and energy inside the cell. It can be divided into synthetic activities which are known as anabolic process. It can be defined as catabolic process in which energy poor enriched molecules are being converted into energy poor molecules, and this and the link of how the catabolic process and anabolic process are linked together with, they are linked together with the synthesis or synthesis of ATP and the use of ATP by the anabolic processes. They are being linked together with some reducing powers जिनको हम energy coupling भी कहते हैं. We had studied about how the metabolic process can be regulated inside the cells and why this regulation is essential for the cell. The regulation is essential because if the cell is deregulated, if the metabolism is deregulated, it means it leads into metabolic disruption, and metabolic disruption means loss of free energy of the cell. And when there is a loss of free energy of cell, or we can say the cell will not have any more free energy, and when cell doesn't have free energy, it means the cell is dead. So metabolism must be tightly controlled, चाहे वो एनाबॉलिक स्टेप्स में हो चाहे कैटाबॉलिक स्टेप्स में हो। फ्यूटाइल साइकिल नहीं होनी चाहिए और ये रेगुलेशन का काम एंजाइम्स करते हैं, वो खास करके कौन सी स्टेजेस पे? जहाँ पर इरिवर्सिबल स्टेप्स हो। तो आज हमारी क्लास जो है मैं इसको आई विल कंक्लूड माय क्लास एट दिस पॉइंट, एट दिस टॉपिक दैट इज़ ऑन ओवरव्यू ऑफ मेटाबॉलिज्म। हम रेस्पिरेशन, जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, हम उसको कल नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ओके।